Hello students, welcome to lecture number 16 of aldehydes, ketones and carboxylic acids. As we know that at presently we are focused on a chemical reactions of aldehyde and ketones. In these portions of chemical reactions of aldehydes and ketones, we already discussed about the 6 different categories. Out of these 6 categories, first category is a nucleophilic addition reactions. Number 2, nucleophilic additions reactions followed by eliminations of a water molecule. Number 3 is a reduction of aldehydes and ketones. And number 4 is the oxidations of aldehyde and ketones. In these sections of oxidations of aldehyde and ketones, in last sessions, means in lecture number 15, we completed oxidations of aldehydes with a weak oxidizing agents like Tollens reagent and Fehling solution, and the oxidations of ketones with the help of strong oxidizing agents like concentrated HNO3, acidic KMNO4 or acidic K2Cr2O7, right? In the K portion of ketone, we classify 2 different types of ketones, symmetric ketones and asymmetric ketones. So, in these portions of these oxidations, there is one more portion is most important for the competitive examinations as well as our Guchket 2. So, it's the oxidations of methyl ketones with NaOX. NaOX means it's a sodium hypohalide which is made up with the help of halogen plus NaOH. And in short manners, it's called as an haloform reaction. So, what is the requirement for these reactions? You know that the title itself suggests that there is a methyl ketones. The meaning of methyl ketones means aldehydes and ketones having at least one methyl group which is linked to the carbonyl carbon. Mind well, it is applied for methyl ketones only, not ethyl ketones or propyl ketones. Okay. Your carbonyl carbon is attached with the methyl group is called as a methyl ketones. So once again, aldehyde and ketones, right, containing a CH3CO group. On treatment with is a excess of halogen in presence of alkali. They produce haloform, likewise chloroform, bromoform or iodoform. What in these reactions that we have to observe, in these reactions all the 3 hydrogen atoms of the methyl group are first replaced by halogen atoms to form either a trihaloaldehyde or a trihaloketone. Right? Once again, if we perform these reactions with the help of CH3CHO, when it reacts with a excess of chlorine in presence of NaOH, so the first step is a chlorination step. It's a chlorination step. In this step, CCl3CHO is formed. So there is a replacement. All 3 hydrogen atoms of this methyl group are first replaced by the halogen group to form a trihaloaldehyde. Here the trichloroaldehyde, or sometimes other name of this compound is chloral. It's chloral, and 3 mole of hydrochloric acid is released. Okay. Then after this chloral or this trihaloaldehyde is subsequently reacts with a alkali. Right now this CCl3 into CHO reacts with sodium hydroxide. This process is called as an hydrolysis process. So hydrolysis of this process gives chloroform and HCOONA. So it's a chloroform. And this is sodium formate. Okay. So we know that this is the first example of a aldehyde. For example, if I perform these reactions with the help of ketone, right, means in the case of acetone,
So this acetone first reacts with a bromine in presence of NaOH. As we know that there is a bromination reactions, and these bromination reactions can take place at the alpha carbon of a methyl group, and the 3 hydrogen atoms of this methyl group are first replaced by a bromine atoms to form a tribromoacetone. This is nothing but it's a tribromoacetone, and 3 mole of HBr is released. The name of this compound is tribromoacetone. Now this tribromoacetone, when it reacts with sodium hydroxide, right? So hydrolysis process can take place, and we get a product is CHBr3 plus CH3COONA. This CHBr3 is called as an bromoform, and this is sodium acetate. Okay, fine. When these reactions is carried out with a sodium hypoiodide, for example, another example is like that. This is CH3CHO. When its reactions carried out with the help of iodine in presence of NaOH, so iodination can take place. Iodination of a alpha carbon, right? At the alpha carbon, when 3 hydrogen atoms are replaced by iodine, so it's converted into Ci3CHO plus 3 mole of Hi. This is triiodo, right? Acetaldehyde. Now this triiodoacetaldehyde, right? When it reacts with NaOH, so hydrolysis phenomena can take place, and we get a iodoform as a precipitase, right? So this is iodoform, and yellow precipitation of iodoform. It means that our chloroform is a liquid in form. Same way, bromoform is also liquid in form, but iodoform in a solid form and in a form of yellow precipitase, right? So it's a produce. Same way, if this reactions is also carried out with the help of acetone, for example, if I carried out with the help of acetone, same way acetone is also reacts with iodine in presence of NaOH, so iodination process can take place, and this iodination of a alpha carbon, or means 3 hydrogen atoms, are replaced by iodine, and we get a product is like that. This is 3HI, right? This is nothing but it's a one type of a 111 triiodoacetone, right? This is a 111 triiodoacetone. And now this 111 triiodoacetone is further reacts with a NaOH, so hydrolysis can take place, and this hydrolysis gives what? Same way, iodoform, yellow precipitase of iodoform, and sodium acetate is released. Clear? If we perform these reactions, so in some book they discuss in a straight manner like that with a sodium hypoiodide, but we know that this sodium hypoiodide is prepared with the help of sodium hydroxide and iodine. So in some book they can write the reactions in this manner too: CH3COONA plus CHI3 plus 2 mole of NaOH, right? So 3 mole of sodium hypoiodide. So due to the formations of this yellow precipitase of iodoform in this reaction, that's why it's called as an iodoform test. This is the best test, right? The test which is called as an iodoform test. Okay, carbon, but mind well, in this case, carbon double bond is not attacked or remains intact, right? For example, if I having a
example like that, this is CH3, this is H, same way here CH3, C double bond O, CH3, right? When I perform these reactions with the help of NaOH plus Cl2, or some people write like that, NaOCl, sodium hypochlorite, right? Okay, so in these reactions of sodium hypochlorite, we know that this is the ketone. Okay, the adjacent position is a CH3. Okay, so reactions can take place at here, but C double bond C bond is not attacked or remains intact. Okay, so we get a product like that. This is CH3, H, CH3. Okay, so it's a C double bond O, O, Na plus CHI3, CHCl3, right? Here it's a chloroform. So once again, here says that it's a one type of a 3-methyl. What is the name of this compound? It's a 3-methyl pent, 3 in 2 on, and it's converted into sodium. Okay, mind well, this is trans in nature. Okay, trans. So sodium trans 2 methyl, sodium trans 2 methyl, total carbon 1 2 3 4 means but 2 enoate. So this test is particularly for the identification of a certain type of aldehyde, right? Those who are having a group is a methyl or not, right? So this is the one type of identification test. So iodoform test is a detections for the CH3CO group. Okay, it's a detection. This test is used for the detection of CH3CO group or CH3CHOH group, which is produce CH3CO group on oxidation. तो जो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, उसमें आपको इसका आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. तो उसके लिए ये ज्यादातर यहाँ पे यूज हो रहा है. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, मैं आपको एक थोड़ा एप्लीकेशंस मोड दे देता हूँ. जैसे मेरे पास एसीटोन है, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है. जैसे मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है, राइट. जैसे मेरे पास है एसीटोफिनोन है, जैसे मेरे पास फॉर्माल्डिहाइड है, ऐसे मेरे पास अभी है CH3 CH2 CHO है. जैसे मेरे पास बेंजाल्डिहाइड है, जैसे मेरे पास बेंजोफिनोन है. देखिए, मैं थोड़ा इसका एक एप्लीकेशंस पोर्शंस में यहाँ पे डालना चाहता हूँ. आप देखिए कहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा. यहाँ पे होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट. यस, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कीटोन के पास ही खड़ा हुआ है. यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप कीटोन के पास होगा. यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन में CH2 है, तो ये नहीं कर सकता है आयोडोफॉर्म टेस्ट. यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है. ओके, ये फॉर्माल्डिहाइड में नहीं होगा, राइट. ये कार्बन ये ब्यूटेनॉल में भी नहीं होगा क्योंकि CHO मींस सी डबल बॉन्ड हो, द एडजेसेंस ऑफ दिस सी डबल बॉन्ड हैविंग अ CH2. यहाँ पे हो सकता है तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता. तो आपको मालूम हो जाए. ये एप्लीकेशन पॉइंट्स इसलिए दिया हुआ है कि अगर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे डाली जाएंगी कि फॉलोइंग विच कंपाउंड्स यूज द आयोडोफॉर्म टेस्ट और नॉट, और जैसे हमने एडवांस की जो पैटर्न्स है तो वो जो इंटीजर टाइप्स है तो वो तो कहीं इतने सारे कंपाउंड्स देके आपको बोले कि कितने कंपाउंड्स है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते. जैसे मैं आपको थोड़ा इसके लिए थोड़ा और डिटेल में भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ. जैसे मेरा थोड़ा डिटेलिंग पोर्शंस इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास देखिए, मेरे पास यहाँ पे मिथेनॉल है, और मेरे पास इथेनॉल है CH3CH2OH. देखिए आप, तो मुझे बोथ आर प्राइमरी इन नेचर, ये दोनों प्राइमरी है, तो लुकास टेस्ट से तो मुझे कोई मालूम नहीं पड़ेगा.
जैसे मिथेनॉल है तो उसका मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो वो फॉर्माल्डिहाइड में चला जाएगा और ये एसीटाल्डिहाइड में चला जाएगा। यानी मिथेनॉल का मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो वो कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड इसमें आ जाएगा। तो फिर मैं इसका टेस्ट आयोडोफॉर्म से करके उसको डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ ना कि भाई ये अलग है और ये अलग है। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH और मेरे पास एक दूसरा कंपाउंड है CH3 CHOH CH3। देखिए ये है जो है प्रोपेन 1-ऑल है, राइट। दिस इज प्राइमरी इन नेचर बट दिस कंपाउंड इज सेकेंडरी इन नेचर। तो मुझे ये पता कैसे चल सकता है कि मेरा कंपाउंड एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है और दूसरे में ये प्रोपेन 2-ऑल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट आई ऑक्सीडाइज दिस प्रोपेन 1-ऑल विद द हेल्प ऑफ सच अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम हाइपोहैलाइड 2। सो फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CHO में चला जाएगा, राइट। और ये कंपाउंड कहां पे चला जाएगा, विच इज कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। हमें मालूम ही है यहाँ कार्बोनिल के जो बगल में जो कार्बन है वो मिथाइल नहीं है, तो यानी वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, बराबर पता चल गया? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम इसमें? आपको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे अप्लाइड फॉर्मेशंस तो इसलिए डाला हुआ है कि आपको थोड़ा पता चल जाए। अब आपकी जो बुक है वहां पे एक जो थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चंस उसने यहाँ पे डाला हुआ है, वो जो है ना वो प्रॉब्लम नंबर 12.4 है। प्रॉब्लम नंबर 12.4 है। यहाँ पे मेरी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए उस प्रॉब्लम में उसने क्या बताया हुआ है। देखिए आप हम पहले से ही शुरू करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ अ मोलिकुलर फॉर्मूला, उसने बताई है C8H8O। अब देखिए एक ही ऑक्सीजन है, राइट। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही नहीं, या अल्कोहल होगा या कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा या ईथर होगा, चार में से एक ही प्रोबेबिलिटी है। फॉर्म्स एन देखिए आप एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िए उसको। ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल रिएजेंट्स एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स, राइट। ओके, पहले आप देखिए यहाँ पे हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ तो हमें मालूम है कार्बोनिल ग्रुप ही रिएक्शंस कर सकता है। इट मींस दैट योर C8H8O कंपाउंड्स आइदर एल्डिहाइड और कीटोन इन नेचर, ये हमें पता चल गया है, यानी अल्कोहल ईथर तो नहीं है। आगे बढ़िए, एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट्स ऑन हीटिंग विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि हमेरा जो एल्डिहाइड और कीटोन है वहां पे कार्बोनिल ग्रुप के बिल्कुल बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ही वो येलो प्रेसिपिटेट्स ऑन हीटिंग विथ आयोडीन दे सकता है, राइट। तो हमें दो पता चल गया है। हमारा कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड और कीटोन है, और दूसरा जो कंपाउंड है वो उसके बगल में C डबल बॉन्डो के बिल्कुल बगल में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अभी जो कहानी में जो ट्विस्ट बता रहे हैं, इट नाइदर रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट। वो क्या कर रहा है, टॉलेंस रिएजेंट का और फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, और डज इट डीकलराइज ब्रोमीन गिव वाटर और बेयर्स रिएजेंट। यानी हमें बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड है ही नहीं, हमारा कंपाउंड कीटोन है। इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, सो डेफिनेटली दे रिड्यूस टॉलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट इवन दो इट्स वर्क विथ अ ब्रोमीन वाटर 2 और बेयर्स रिएजेंट, राइट। तो लेकिन उसने वो जो प्रोसेस नहीं किया हुआ है। तो अभी तो हम एक जगह पे फोकस हो गए कि हमेरा जो कंपाउंड है वो जो कंपाउंड है कीटोन ही है, और कीटोन के बिल्कुल बगल में कार्बोनिल ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप है। On drastic oxidation, what they say is drastic. What is the meaning of drastic? Aggressive conditions are required, and aggressive conditions always required in the case of ketone. With a chromic acid, it gives a carboxylic acid. हमें पता है कीटोन का ऑक्सीडेशन हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ही बताएगा। वो जो कंपाउंड है वो B में चला जाएगा, having a molecular formula C7H6O2. अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमें दिखाई गई है और ये जो फॉर्मूला हमें दिखाई गई है, इससे साफ पता चलता है। यहां से भी देखेंगे कई बंदे ऐसे होते हैं जैसे वो IIT एडवांस के लिए ही उसका थिंकिंग पैटर्न हो जाती है, या JEE मेन का अच्छी तरह से स्कोर करने वाले या नीट का अच्छी तरह से स्कोर करने वाले, वो जो है ना वो पढ़ते हैं, डेफिनेटली पढ़ते हैं, लेकिन उसकी जो नजर है ना वो यहाँ पे होती है। 8 में से 7 हो गया ना,
यानी उसका मतलब है कार्बन कट हो गया है, दूसरा O डबल हो गया है यानी कीटोन ही होगा, तो वो जो ये नहीं पड़ेगा ना तो भी वो कीटोन से सीधी तरह से वो सोच सकता है। ओके, सो आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स A and B एंड एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे हमें ये जो बताया हुआ है तो हमें उसका थोड़ा इसका एक पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें जो डाइनाइट्रोफिनोल का हमें कुछ यहाँ पे दिया गया है तो पता कैसे चलेगा कि वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। तो हमें तो पता ही नहीं चल सकता है कि भाई हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक की तरह से भी हम इसको दिखा सकते हैं या उसका सोच सकते हैं। तो वो जो कंपाउंड है उसके लिए हमें थोड़ी इसमें कई लोगों को उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। तो देखिए हम उसको ऐसे भी सोच सकते हैं, हम उसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं आपको एक वो जो फॉर्मूला है मैं जैसे आपको यहाँ पे बता रहा हूं, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जैसे डिग्री ऑफ ये DBE हम जैसे दिखा रहे हैं, राइट, 4C8H8O, राइट। तो वो जो DBE हम देखना चाहते हैं वो इसमें ऐसा सोच रहा है कि भाई ये क्या है, इसमें अनसेचुरेशन क्या है। तो हमें 8 कार्बन से तो 4-2 इसका एक फॉर्मूला है, फिर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है तो उसका 1-2 का फॉर्मूला है, और ऑक्सीजन 1 है तो उसका 2-2 का फॉर्मूला है, विच इज डिवाइडेड बाय 2 + 1 है, तो ऐसा इसका हो गया 5। सो इट मीन्स इसमें 5 डिफरेंट ऐसी साइड्स है। ये जो DBE है ना वो क्या होता है, अनसेचुरेशन की बात कर रहा है कि इसमें अनसेचुरेशन कितना है। तो 5 साइड्स इसी है कि जहां पे हमें अनसेचुरेशन दिखाई दे रहा है। कीटो ग्रुप है तो उसका मतलब तो हो गया कि भाई कीटो ग्रुप तो अनसेचुरेटेड ही है, और रिमेनिंग 4 हुए तो रिमेनिंग 4 का मतलब हमें ऐसा पता चल रहा है कि वहां पे बेंजीन रिंग होंगे। बेंजीन रिंग इटसेल्फ एक अनसेचुरेशन और 3 डबल बॉन्ड, तो 3 + 1 4 और एक C डबल बॉन्ड होगा 5, यानी हमारा जो कंपाउंड है वो एसीटोफिनोन होगा। देखिए कार्बन 8 है, 6 + 7 + 8, हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 + 3 8 एंड ऑक्सीजन 1। तो इसका हम जैसे हमें पता है इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा ही, उसका 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल के साथ भी रिएक्शंस होगा, राइट, और उसका जो ऑक्सीडेशन हम कर देंगे तो वो जो ऑक्सीडेशन है वो हमें बेंजोइक एसिड में डाल देगा। वो हमें सब कुछ पता है, बेंजोइक एसिड का हमें फॉर्मूला है C7H6O2, ये भी हमें पता है। तो इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि कैसे हम अपना कंपाउंड है वो ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया ये गया है कि A and B का हमें कंपाउंड्स बताना है और एक्सप्लेन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। तो कहाँ उसका रिएक्शंस हो रहा है वो हमें करना पड़ेगा। जैसे हमने आपको दिखाया गया कि जैसे एसिटोफिनोल है वो 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल के साथ ऐसा DNP डेरिवेटिव्स वो बताएगा। जैसे हम उसके बाद में देख सकते हैं कि जैसे हमारी बुक्स में बिल्कुल दिया हुआ है कि जैसे मेरे पास एसिटोफिनोन है उसका आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया हुआ है, तो मुझे आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेस मुझे है मिल गया है और ये सोडियम बेंजोएट मुझे मिल गया है, और H2CrO4 से मैं जैसे उसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो विच इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी आपका जो थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस के मोड में भी पूछा जा सकता है और MCQ की तरह से भी वो पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हम थोड़ा इसलिए लेक्चर की थोड़ी अभी जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, कोई भी मिस मत कीजिए। थोड़ा लंबा भी होगा इसलिए आप मेंटली भी मैं प्रिपेयर कर सकता हूं, उसका मैकेनिज्म के साथ मुझे जाना चाहिए इसलिए मैं मैकेनिज्म के साथ ही आपके साथ बात करूंगा। तो आज तक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। अब नेक्स्ट जो मेरा है वो रिएक्शंस विद अल्कलीज है, तो वो नेक्स्ट सेशंस में हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।